بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں جی آیا نو خوش آمدید. اور یہ بھی لوگوں کی پرزور فرمائش ہے کہ سامیہ جی جو ہے کبھی ہمیں کھڑے ہو کے بھی اپنا مونولوگ کر لیا کریں. آپ کرسی پہ بیٹھ کے کرتی ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلے تو اسی پایا کی ہویا ہے. تو خیر آپ یقین کریں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ سچ مچ ایک نائٹ سوٹ ہے، سچ مچ قسم کا. تو جو ہے لیکن کیونکہ تھوڑا سا وارم ہے اور گرم کپڑا ہے اور مجھے پسند ہے یہ جو اس کو رلی ورک کرتے ہیں، پیچ ورک کرتے ہیں، اس کو رلی ورک کہا جاتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کی، میں کہتی ہوں اللہ ان کو سلوٹ دے ان کے ہاتھوں میں، کہ یہ پورا سوئی دھاگے پہ بنا ہوتا ہے. یہ جتنا کام ہے یہ سوئی دھاگے پہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے، مشین کا نہیں ہے. تو میری بڑی قدر ہے اپنے ملک کے اس آرٹ کی. سندھی رلی ورک اسے کہا جاتا ہے. پاکستانی تو جانتے ہیں، جو ہمارے باہر کے بہن بھائی ہیں انہیں بتانا چاہ رہی ہوں. اجرک میری ویسی کمزوری ہے، ایتھنک ٹریڈیشنل چیزیں میری ویسی کمزوری ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا اپنے اس پہ لگ گئی ہے، لیکن میں نے کہا ذرا سا ہٹ کے بھی بات کروں، میرے سے ستاروں سے ہٹ کے بھی کبھی بات کر لیا کریں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے میں کہیں چلی جاؤں. ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے خاموش رہنا ہے، کیونکہ مجھے اگلے دن ہاروسکوپ ریکارڈ کرنا ہے، مجھے اپنی طاقت بچانی ہے. آپ سوچیں کہ میری چہرے پہ لکھا ہے ملک کا کیا ہوگا. ابھی کوئی اوتھ لیتی نہیں گورنمنٹ، انہیں جانا کے دو ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں نے تو بس پاکستان کے تو اسکرپٹ رائٹرز کو نہیں پتا پاکستان کا کیا فیوچر ہونا ہے. تو فیوچر تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا فیوچر ہے. یہ تو ایک اندازوں سے ہم گیم چلا رہے ہوتے ہیں، ایک رہنمائی لے کے ستاروں کی چالوں سے. ہوگا کیا یہ تو میرے لیے بھی سسپینس ہے، کیونکہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. اس کو میں اندازوں کا علم کہتی ہوں، حساب کتاب کا علم کہتی ہوں. جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو ایک بڑا ہی محدود سا علم ہے. اور اگر میرے پاس دلیل ہے کہ یہ میں کیوں پیش گوئی دے رہی ہوں، کیونکہ میری پولیٹیکل پیش گوئیوں نے مجھے اچھا خاصا پڑھنے ڈال دیا کہ میرے ٹیسٹ لیے گئے باقاعدہ کہ کیا میرے پاس کوئی چڑیا یا کوئی چڑیل ہے جو مخبری دیتی ہے. نہیں، میں نے ان کی لینگویج کو پرسیو کر کے اپنی اوپینین بنانی ہوتی ہے کہ اگر اس ستارے نے یہاں سے یہاں جگہ بدلی ہے. ایفیمیرس آپ لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے ایفیمیرس ستاروں کا. اور میرے جو میں ہاتھ میں کارڈز ہوتے ہیں، میں کوئی لکھا ہوا نہیں پڑھ رہی ہوتی، صرف اس میں ستارے ہیں، ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور ستارے ہیں. میں دور ہے میرے سے پیپر، میں آپ کو دکھاتی ورنہ نہیں، میں لے کے آتی ہوں دکھاتی ہوں. آپ نے یہیں رہنا، میں ادھر ہی آتی ہوں. مائک تو میرے ہاتھ میں. یہ دیکھیے، یہ ہے پیپر، ٹھیک ہے، اور یہ ڈبے 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 بنے ہوئے، اس میں صرف ستاروں کے نام ہیں، مارس، وینس. مجھے اس کی لینگویج کو پرسیو کرنا ہے. تو یہ وہ ہوم ورک ہوتا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس پہ کوئی پوائنٹرز نہیں ہوتے، سب میں ایکسٹمپور بول رہی ہوتی ہوں. تو میں ڈر بھی رہی ہوتی ہوں کہ اللہ پاک جو منہ سے بات نکلے اس کی عزت رکھ لیجیے گا. تو میرے پہ مینٹلی بھی بہت پریشر ہوتا ہے. دوسرا، کیسے سامیہ خان تک پہنچا جائے. یہ نمبر ہے اسکرین پہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا آ رہا ہے 0302444771. یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے. دیر سویر اب نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے میں خاصی ایفیشینٹ اب ہو چکی ہوئی ہوں، کیونکہ ٹی وی سے میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی کمپلینٹ والا نمبر بھی ہے، اگر آپ کو یہ نمبر رسپونڈ نہیں کر رہا، ساتھ ہی اسکرین پہ کمپلین والا نمبر ہے. لیکن اگر آپ ایک ڈیجٹ بھی دائیں سے بائیں کریں گے تو ڈسکلیمر ہے کہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ ماشاءاللہ ہم پاکستانی جو ہے نا، وہ بس ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ہم اپنے ملک کو کیوں ایسے بار بار برا کہیں. پاکستانی شناخت ہے چاہے جیسا بھی ہے، اپنا بچہ، اپنی ماں، اپنا باپ جیسا بھی ہو ہے تو وہ اپنا ہی. خیر، تو جی اب ہم چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے. جنوری کا دوسرا ہفتہ 8 جنوری سے شروع ہو رہا ہے ہوم ورک، اور ختم میں کر رہی ہوں 15 جنوری پہ.
कैसा रहेगा 12 सितारों का ये वाला हफ्ता। अब हम चलते हैं 12 सितारों की तरफ। जोन ए, जोन बी, जोन सी, साथ ना हमारा छोड़िएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमारी लाइफ लाइन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। मुझे ये बहुत मुश्किल लाइन लगती है बोलनी। मुझे मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या कहा करूं, क्योंकि मुझे ये लाइन नहीं अच्छी लगती। आप मेरे हैं तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे ना। आप हमारी व्यूवरशिप भी बढ़ाएंगे। आप बढ़ाएंगे तो मेरी मुझे यूट्यूब भी अपने पास रहने देगा, वरना फिर मैं यूज़लेस हूँ, बेकार हूँ। तो खैर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सब आपको ज़्यादा मिला करेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। कुछ मेरा साथ आप दीजिए, कुछ मैं अपनी हिम्मत से आपके लिए ज़्यादा काम करूँगी, ताकि जो रिश्ता बना है इतने सालों से वो जुड़ा रहे, वो एतमाद का रिश्ता जो मेरा और आपका बना है। तो जी चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। 2023 का दूसरा हफ्ता आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पहला हम जिसे वेलकम करते हैं जोन ए का जो सितारे हैं, जोन ए वाले। और जोन ए का पहला सितारा जो है बुर्ज हमल, यानी कि बुर्ज एरीज। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और अगर उनका नाम इंग्लिश में ए से आई, यू, ई, एल, वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ये वाला जो मैं वीक शुरू करूँगी 8 ऑफ जनवरी से हम शुरू होके हम इसे एंड कर रहे हैं 15 जनवरी पे। तो इस बारी देखें, मैं मैक्सिमम डेज़ अभी तक मैंने जो है 15 जनवरी तक मैंने मैक्सिमम डेज़ को मैंने कवर किया है। अल्लाह मेरी आगे भी मदद करे। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे हमारा फॉर्मेट है कि दिन कैसे रहेंगे, ये तारीखें कैसी रहेंगी। तो लास्ट भी जब मैं क्लोज़ कर रही थी आपका नया साल का पहला हफ्ता जो था एरीज, 8 जनवरी, 9 जनवरी एंड 10 जनवरी मैंने बोला था कि इस टाइम को बच्चों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इस टाइम को स्पेंड करें खूबसूरत तरीके से। जो है अच्छी डेट्स हैं, नए साल की बिगिनिंग। आपको रिश्तों की साइड से बड़ी वार्मथ मिलनी चाहिए थी। आपका पूरा 1 जनवरी से जब मैं ट्रैक करती हूँ, और 10th तक तो रिकॉर्ड ये था कि फैमिली लाइफ, रिश्ते, शॉर्ट ट्रैवलिंग, बच्चे, रोमांस, सब एरिया यहाँ पे प्रोटेक्टेड थे। अल्लाह करे ऐसा ही रहा हो आपके साथ। अच्छा जी, 11th और 12th के जो 2 दिन हैं, सर्दी से बचने की कोशिश करें जिन मुल्कों में ज़रा सर्दी का मौसम है, क्योंकि कुछ आप पे या तो हेल्थ मुझे थोड़ी सी आपको लग रहा है कि परेशान कर सकती है एरीज, या खुदा ना करे वर्कलोड, या किसी ना किसी मुलाजिम की खिच खिच जो है ना, ये भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान में रौला है। क्योंकि दुख मुझे ये होता है अपने मुल्क में कि हम काम नहीं करना चाहते। हमने अपने मुल्क को भी मंगता बना दिया, हमने अपने मुल्क के लोगों को भी मंगता बना दिया। बहुत आसान है किसी के आगे भी हाथ फैला देना। तो वो ये रवैया ऊपर से नहीं, ये नीचे से लेके ऊपर तक ये रवैया गदागरों वाला हमारा बन चुका हुआ है। खुददारी, किस खुददारी की बात करते हैं कि हम बड़े खुददार कौम हैं, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है कि जो मैं हर बारी परेशान होती हूँ जब आप सड़क पे निकलते हैं, ट्रैफिक कम, गाड़ियाँ कम, और फ़कीर हद से ज़्यादा हो गए, हद से ज़्यादा फ़कीर हो गए। मत दीजिए, मैं तो कहूँगी इनको, उन सफ़ेद पोशों की मदद करें जो सड़क पे निकल के मांग नहीं सकते। 11th और 12th में 2 चीज़ों में आपको प्रेशर तंग करता है, या सेहत, या खुदा ना करे वर्कलोड। तो अपना बहुत आपने ख्याल रखना है। 13th, 14th और 15th अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों की जो है ना
मुझे अच्छा लगता है जिनकी, मैं कहती हूँ जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इस दुनिया में अच्छी है, समझो उनके लिए दुनिया जन्नत है। क्योंकि जब लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग दुनिया में मैं नहीं समझती कोई और हो सकती है। तो ये जो है ये टाइम आपके लिए अल्लाह के हुक्म से 13, 14 और 15 की जो तारीखें हैं, ये यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ, आपकी कोई वर्क जो रिलेटेड लोग होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, इस वक्त आपने जो मुतालिबात, जो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवाना है ना एरीज़, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप जो है ना अपनी चीज़ें करवा सकते हैं। फाइनेंसिस में स्ट्रैटेजी अभी भी बनाएंगे, आप अभी भी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। आगे मैं देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह करेगा कि करियर की बिगनिंग 2023 सितारों में तो बहुत प्यारी रोशनी है। सोशल साख, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़, अपने वर्क एरिया में प्रमोशन, या अनएक्सपेक्टेडली काम का मिल जाना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी अल्लाह के फजल से हुई हुई हैं। और फिर 3 जनवरी के बाद से एक सितारा जो मज़ेदार कोशिश कर रहा है एरीज़ आप लोगों के लिए, वो ये कर रहा है कि आपकी दोस्तियां जो है आपकी दोस्तियों को आपकी फेवर में करा रहा है। और दूसरा जो है, मैं बीमार वैसे बाय द वे हो चुकी हूँ। बीमारी का रीज़न क्या है? ये जो लाहौर हम नंबर 1 पे हैं, आलूदगी में दुनिया में नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। जो स्मोग की बीमारी है, तो मैं तो पकड़ी जा चुकी हुई हूँ उससे। तो जी दोस्तियाँ जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। और कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, कोई जैसे कारोबार में भी रोशनी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि कोई मनपसंद काम मिल जाए, जिसकी मेरे एरीज़ को ख्वाहिश हो, जिसकी मेरे एरीज़ जो है जिसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो और दूसरा जो है, पहले हमने आपसे कहा कि खुद एतमादी ज़िंदगी में अब आपकी वापस आएगी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये जो 20 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ हुआ वक्त, ये मेरे एरीज़ का कॉन्फिडेंस उन्हें वापस करेगा। उनकी ज़िंदगी में अपने शरीके हयात की तरफ से या अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ से रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस के एलिमेंट नज़र आते हैं। सोशलाइज कीजिए, खुल के कीजिए। इस वक्त आप लाइमलाइट में बड़े आराम से आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं। और फाइनेंसिस में अभी भी अब थोड़ा सा टाइम और रह गया है। यूँ समझ लीजिए हम जनवरी के सेकंड वीक में आ गए हैं ना, मार्च से देन अप्रैल से आसानी यहीं से शुरू होती जाएगी। फिर मैं आपको डराना यहाँ पे बंद कर दूँगी। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो आ गई है, जो ससुराली रिश्तेदारियाँ हैं, उनमें और ख़ानदान की जो रिश्तेदारियाँ हैं, उनमें उनमें बहुत रिज़र्व रहिएगा। उनमें आपने कोई उसमें किसी भी चीज़ में नहीं जाना, कन्फ्रंट नहीं करना किसी चीज़ को। और दूसरा जो आपने बहुत एहतियात करनी है, वो आपने करनी है जो आपके वो अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो मेरा मशवरा होगा कि हस्ब तौफीक सदका कीजिए, फिर अपने सफ़र की बिस्मिल्लाह कीजिए, सिर्फ इतनी सी एहतियात अपनी ज़रूर रखिएगा। तो ये था जी हमारे एरीज़ का इस हफ्ते के सितारों का हाल। जनवरी का दूसरा हफ्ता, अब बारी आती है सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों की, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। हम बात करेंगे जी, हमारा इस वक्त जो टारगेट है वो है जनवरी 2023 का सेकंड वीक, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉरियंस 8 ऑफ जनवरी से, और इसे मैं एंड अप कर रही हूँ 15th ऑफ जनवरी पे। तो जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं टॉरियंस, आपका जो सेकंड वीक है 8th जनवरी से 12th जनवरी तक, तो आप सेफ जोन में हैं। रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना है, बहन भाई, घर में कोई पंचायत रिजॉल्व करनी है, बच्चों की तरफ से अमन है। लव लाइफ की एरिया में भी इस वक्त तो सुकून की इंडिकेशन है। यहाँ पे तो सितारे ठीक है, लेकिन
13th जनवरी, 14th जनवरी एंड 15th जनवरी। ये जो 3 तारीखें हैं ना टॉरियंस, इसमें आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। हेल्थ का आपने, ताकि आपकी हेल्थ पे किसी किस्म का भी जो प्रेशर है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो हेल्थ एरिया में ख़ास एहतियात आप करेंगे, वर्क एरिया में भी लोड को मैनेज करेंगे, अपने जो मातहत स्टाफ होता है उन पे भी ज़रा विजिलेंट रहिएगा, और जो कुलीग्स होते हैं उनके साथ भी ज़रा बनी बनाई करके गुजारा कीजिएगा। ये 3 तारीखों में कोई एक तारीख कहीं भी इन जोन में से किसी एक जोन की भी आजमाइश ना ले। तो हमारा काम है सिर्फ उन तारीख की मैं आपको वार्निंग देती हूँ। डैमेज अल्लाह के हुक्म से होना है, ब्लेसिंग भी रब के हुक्म से आनी है, तो उसमें तो मेरा भी बस नहीं है। अच्छा जी, अभी भी हमें जो स्ट्रेटजी बना के चलना है टॉरियंस अज़दवाजी ज़िंदगी में, आप लोग कहेंगे कि वो कौन सा दिन होगा। चलें आज हम इसको इस तरह टॉरियंस सम अप कर लेते हैं कि पूरा जनवरी एंड पूरा फरवरी, ये 2 महीने रह गए हैं जिसमें ज़रा सी भी आपने समझदारी के साथ मामलात को ले लिया, चला लिया, तो इंशाल्लाह मार्च के बाद से ये यहाँ पे मसले रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैं ये जुमला बोल रही थी कि खुदा ने नागुज़ीर हालात में ही जो है, अगर तलाक नापसंदीदा फ़ेल है लेकिन नागुज़ीर हालात में इसे हलाल भी कहा गया है। खैर एनीवेज़ जी, आगे चलते हैं। वो जो स्टूडेंट्स वाली रोशनी है वो अभी भी बरकरार है। तो जो हमारे टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम अभी भी बहुत मज़े का है, और हमारे वो टॉरियंस जो ओवरसीज़ कहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करना चाहते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क का काम रिज़ॉल्व कराना चाहते हैं, कोर्ट से कभी आपको मसाइल होते हैं, कभी आपको दफातर से वास्ता पड़ता है, कभी आपको सरकारी दफातर से, तो अल्लाह ना ही वास्ता डाले। तो खैर आप इस वक्त सितारे आपके साथ हैं, आसमानी सितारे, तो ज़मीनी इदारे भी आपका ताउन करते हुए नज़र आते हैं टॉरियंस। और जो है इसी तरह बिज़नेस हाउस में शुक्र है कि अब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे वो जो एक चीज़ स्लो हो गई थी, डेड लॉक लग गया था 24 अक्टूबर 2022 और 3 जनवरी 2023 से, अब ग्रेजुअली उसमें जान पड़नी शुरू हो जाएगी। अब हमारे टॉरियंस का दिल भी चाहेगा सोशलाइज करने को, कारोबार में मेहनत करने को। जब इंसान को नज़र आता है ना कि इस काम में मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, तो फिर वो उसके लिए मेहनत भी करता है। बाकी जो है वो हम आगे देखते हैं। तो ये है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ टॉरियंस कि आपका एक बड़ा मुबारक सा वक्त है, और ये सिर्फ आपके पास 1 जून तक का एक टाइम है। जैसे मैं दुआओं की साथ आपको बताती हूँ ना, इस वक्त जितना आप रूहानियत से कनेक्टेड हो जाएंगे, आप अपने अगले 100 साल की दुआएं मांग के रखिए। इस वक्त जितना अपने मज़हब में जुड़ जाएंगे, जिस भी मज़हब के तहत अल्लाह ने आपको दुनिया में पैदा किया है, मैं तो हर मज़हब का एहतराम करती हूँ, और जो है जिस भी मज़हब के तहत अल्लाह ने आपको पैदा किया, इस वक्त पनाह उस मज़हब में अगर आप लोगे तो यूँ आसान ये वक्त होता जाएगा। वरना ये वक्त ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप का फेलियर्स होना या रिलेशनशिप में हार्डशिप्स आना, ये आपके अंदर बहुत सारे फोबियाज़, फियर्स, इस तरह की चीज़ों को ये पैदा कर सकता है, और अल्लाह ना करे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें आपको बचाना है, तो मेरा तो आपको ये मशवरा होगा कि जो है आप इसमें ज़रा मेहनत कीजिए, ताकि आपके अंदर जो दिमाग की रोशनी है वो पॉजिटिवली आपकी ज़ात में भी कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जी फाइनेंशियल एरिया में ज़रा सा जनवरी बहुत समझदारी के साथ गुजारना है। अभी भी 15 दिन है, उसको बहुत, यानी 31 जैन तक आपने फाइनेंसिस में बहुत विजिलेंट रहना है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत आपने करनी है।
آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ ہاتھ سے پیسہ سلپ نہ ہو، اس میں آپ نے ذرا سی کیئر کرنی ہے۔ باقی نیک نامی، سوشل ساکھ، اس میں ماشاءاللہ ستارہ خاصا بہتر آپ کے لیے پوزیشن میں ہے۔ اب باری آتی ہے جی زون اے کے تیسرا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور ان کا نام جو ہے اگر اردو میں نہیں انگلش میں کنگ والا کے اور کوئن والے کیو سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ جنوری کے سیکنڈ ویک پہ ہم پہنچ کے آپ سے بات کر رہے ہیں، 8 جنوری سے شروع ہو کے 15 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جیمنائز، اللہ کا شکر ہے کہ 8 جنوری سے 15 جنوری تک آپ بالکل سیف زون میں ہو۔ آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، کوئی بھی پرپز ہے، سرکاری ہے، دفتری ہے، کوئی رشتہ داریوں سے ریلیٹڈ ہے، شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں، جس بھی پرپز سے آپ نے ٹریول کرنا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آپ بامراد ہو رہے ہیں۔ یعنی ٹریول میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں اور آپ کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس میں حل ہوتے ہوئے آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، لوڈ ون کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، بچوں کو آپ کی توجہ، بچوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں، تو شکر ہے اللہ کا کہ یہ والا ویک فیملی فرنٹ پہ میرے جیمنائز جو ہیں وہ کمپلیٹ سیف چل رہے ہیں۔ اب صرف ایک چیز پہ ہمیشہ میں آپ کو ابھی بھی وارننگ دے رہی ہوں، اور یہ وارننگ اسی سال ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو میرے جیمنائز ملازمت میں ہیں، جاب کرتے ہیں، اس میں آپ کو اپنا آپ اگر منوانا ہے تو پھر بہت محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت تھوڑی سی ہارڈ شپس والی نظر آتی ہے۔ یا میرے خدا نہ کرے وہ جیمنائز جو بیمار ہیں، ان کو اپنی صحت کے ریوائول کے لیے ابھی تھوڑا سا فائٹ کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس سال سے ہی آپ کو اپنی اس محنت کا ریوارڈ ملے گا جو آپ فائٹ کریں گے اپنی ہیلتھ ایریا میں، اسی سال آپ جو ہے یو ول بی ریوارڈڈ، یہ تسلی رکھیے گا۔ یہ یہاں پہ یہ پنچایت ہے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ ابھی جو ہے کھانسی آپ بار بار دیکھ رہے ہوں گے، خیر برداشت کر لیں، ابھی تو میں بہت روک کے کرتی ہوں کہ مائک میں سے تو آواز بہت ہی کان کو آپ کے بری لگ رہی ہوگی۔ فائنینشلی جیمنائز، یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے اپنے پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کے لیے، بے انتہا یہ والا آئیڈیل ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہیں سے ریکوری ہونی ہے، کوئی آپ نے فائنینس سے ریلیٹڈ مسئلہ ریزالو کرنا ہے، اس وقت ان ستاروں کی جو گلیکسی ہے نا وہ آپ کی مدد کر رہی ہے آپ کے فائنینشل ایریا میں۔ کوئی خرید و فروخت ہے تو بھی ستارہ جو ہے وہ سپورٹیو نظر آتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو جی ابھی شکر ہے کہ آپ ایک کیوس بھی ہے، پینک بھی ہے آپ کے اندر، ایریٹیشن بھی ہے، لیکن 3 جنوری کے بعد سے یہ 60-40 کا ریشو ہو جانا چاہیے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا دماغ پازیٹیو بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میں ابھی بھی کہوں گی کہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ 40% ریلیکس ستارہ کر رہا ہے، 60 کی آپ فائٹ کیجئے گا، تو تھوڑی محنت آپ کریں، تھوڑا ستارہ مہربان ہوا ہے تو مل ملا کے انشاءاللہ بیلنس ہو ہی جائیں گے حالات۔ تو یہاں پہ جو ہے شکر ہے اللہ کا۔ پھر جو جیمنائز پلان کر رہے ہیں اوورسیز ٹرپ، ٹائم جو ہے وہ سپورٹیو ہے۔ ہمارے جو جیمنائز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹائم سپورٹیو ہے۔ ہمارے وہ جیمنائز جو کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹائم سپورٹیو ہے۔ کوئی امید اللہ تعالیٰ آپ کی سال کے شروع کے 6 مہینوں میں آپ بامراد ہو سکتے ہیں،
وہ आपकी कोई दुनियावी ख्वाहिश है, वो रोमांस से रिलेटेड कोई ख्वाहिश है, वो जो है आपकी दोस्तों से या औलाद से रिलेटेड कोई ख्वाहिश है, ये तो आप ही जानते हैं, या जब पूरी होगी तब ये सस्पेंस जो है वो रिवील होगा। लेकिन यू विल बी रिवॉर्डेड, ये तो नज़र आता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अल्लाह पूरी करे। तो ये जो इस वक्त पैनिक है, कियोस है, कुछ 3 जनवरी से कंट्रोल हो गया है, कुछ 31 जनवरी से कंट्रोल में आ जाएगा, और यही ज़िंदगी का दस्तूर है। लड़ लड़ा के चीज़ें इंशाल्लाह इन दी एंड हम सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन अपने रिलेशंस में उनको ना रुइन कीजिएगा। अपनी बिजनेस रिलेशनशिप या अपनी जो है लाइफ रिलेशनशिप, उनको ना रुइन कीजिएगा इस किस्म के प्रेशर्स में आके। आगे हम चलते हैं जी। अगला सितारा है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, और अगर उनका नाम इंग्लिश में एज, हनी वाला एज से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये कैंसेरियंस का जो सितारा है वो कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा। और कहानी शुरू होती है 8 जनवरी से, और हम इसे ख़त्म करेंगे 15 जनवरी पे। कैंसेरियंस, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं। कुछ फाइनेंशली भी चीज़ें आसान होती हुई नज़र आती हैं। एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल किसी भी पर्पज़ से अगर करना पड़ता है, वो भी मामला ठीक है। फैमिली जो है वो चाहे रिश्तेदार हैं, इन लॉज हैं, अपने बहन भाई हैं, वहाँ पे भी सितारा सपोर्टिव है। बच्चों पे आपको विजिलेंट रहना है, अपने बच्चों पे। मतलब माएँ बड़ी आराम से कह दिया जाता है कि जी हम तो बख्शे जाएंगे, माँ के पैरों तले जन्नत है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसी जन्नत को कमाने के लिए पहले तो आपको मिटना पड़ेगा, कि वो औलाद जिसे आप दुनिया में लेके आते हैं। अभी तो नहीं कहा गया कि मुझे अच्छी जो है ना, माओं के बारे में कहा गया कि मुझे अच्छी नस्ल दो तो मैं अच्छी कौम दूंगा। तो इसी तरह के जुमला मैं कुछ गलत ना बोल रही हूँ, लेकिन आपने, क्योंकि आपकी कितनी अहम जिम्मेदारी है, आपने एक जनरेशन को जो है वो पालना है, एक जनरेशन को सिरे चढ़ाना है। तो जो है मेरा तो आपको ये मशवरा होगा कि जो है बच्चों पे आपने लापरवाही नहीं करनी। इसी तरह अगर लव लाइफ में चीज़ें अभी आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उस पे भी आप अभी इतना को दिल बुरा मत कीजिए। अगर लव लाइफ भी आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, इंशाल्लाह चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। आपके लव लाइफ के एरिया में भी चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब से अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो सितारे की जो पोजीशन है वो नज़र आता है कि आपको अभी थोड़ा सा मेहनत करना है, अगर आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते। अगर ब्रेकअप हो गया तो मिड जुलाई से आपको उसका कॉम्पनसेशन कुदरत कैंसेरियंस देगी। औलाद की मोहब्बत की शक्ल में हो, औलाद की तरफ से ठंडे झोंके हों, आपको अपने प्यार का रिप्लेसमेंट हो, ये अल्लाह का वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जो कैंसेरियंस मैरिड हैं या मैरी करना चाहते हैं। इस वक्त उनके लिए एक आइडियल टाइम शुरू हुआ है, क्योंकि इस वक्त अच्छे पार्टनरशिप और एक अच्छा बॉन्ड आपस में बनने का इम्कान है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरी करना चाहते हैं। इसी तरह बिजनेस रिलेशनशिप में भी सितारा आपके लिए भी बहुत सपोर्टिव है। फिर हम आगे चलते हैं जी। कैंसेरियंस, इस वक्त सितारे की जो ब्लेसिंग है फाइनेंसिस में भी आपकी मदद कर रही है। एक आसानी बन गई थी जब 24 अक्टूबर 2022 आई थी, वहाँ से एक बन गई है जब 3 जनवरी 2023 शुरू हुई है। तो मेरा रब करे ग्रेजुअली और यहाँ पे सितारों की गैलेक्सी आ रही है, और आपके लिए और आसानियाँ होती जाएंगी। आपको आसान लगता जाएगा जो है वो सितारों को समझ के या उनके साथ चलना, आपके लिए चीज़ें मैनेज करना और आसान होता जाएगा। तो ये तसल्ली रखिए कि फाइनेंसिस में इस वक्त बेहतरीन फ़ैसले हो सकते हैं। कोई सेलिंग है, बाइंग है, कोई इनहेरिटेड मसले रिजॉल्व करने हैं,
تو اس وقت وہ ٹائم ہے جب آپ کے لیے ستارے کی جو بلیسنگ ہے وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. جو ہے دوستوں میں ستارہ فلکچویٹڈ بھی ہے، جاندار بھی ہے، ذرا سمجھ کے چلنا ہے، ٹرکی ہے سچویشن آپ کی دوستی والے ہاؤس میں. پھر ایک وارننگ ابھی بھی وہیں پہ، اور اب وہ ختم ہونے والی ہے. 31 جنوری کو یہ وارننگ یہاں سے ختم ہو جائے گی. ٹریفک کے معاملات میں ہوشیار رہیے گا، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، ہیلز پہننے والی خواتین تو بہت محتاط رہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو بھی سواری آپ چلاتے ہیں بہت احتیاط کیجیے گا، اور جو چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی امان مانگ کے گھر سے نکلیے گا، کیونکہ ان سے تو آپ کو اللہ ہی کی امان مل سکتی ہے. چھپے ہوئے دشمن بیک سٹیپنگ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹریٹ کرائم بھی ہم اس میں لے لیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو ایسی ہر قسم کی جو ہے انہونی سے یا ناگہانی سے اپنی امان میں رکھے. تو یہ تھا جی ہمارے زون اے کے 4 ستاروں کا جو ہے جنوری کے دوسرے ہفتے کی صورتحال کا جائزہ، چھوٹا سا جائزہ، تاکہ جو ہے وہ آپ کے دن جو ہیں اللہ پاک ان میں اپنی امان دیں اور آپ کے دنوں کو بہت ہی خیر و عافیت سے گزاریں، اور آپ کو تتی ہوا بھی نہ چھو کے جائے. یہ تو میری دل کی دعا ہے میرے 12 ستاروں کے لیے. لیکن کیونکہ اللہ پاک کا کلاک تو چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم کی طرح جو ہے ان کا میوزک چلتا رہتا ہے، کبھی پہر سخت ہو جاتا ہے، کبھی وہی ٹائم ہے جو آسان ہو جاتا ہے. لیکن صرف اوپر سے جو کن ہے نا اس کی دعا نہ چھوڑا کریں. تو ملتے ہیں جی. آپ نے وہی میری درخواست ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو انرجی بھی میری چارج رہتی ہے. تو ملتے ہیں زون بی میں چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. تھینک یو.